So, good evening, friends. Continuing on with the MCQ through current affairs series, we will be continuing now with the August current affairs, August 2023. Okay. So, I hope you are revising what has been already given. So, let's continue. India is set to open a climate change and health hub in which city and in partnership with Asian Development Bank. तो इसका आंसर न्यू दिल्ली है. इंडिया ने एक नया क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब दिल्ली में इन पार्टनरशिप विद एडीबी ओपन किया है. ठीक है, ओपन करने जा रहा है. द हब विल फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग, पार्टनरशिप्स, इनोवेशंस एंड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड नेचुरल डिजास्टर्स ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज टू चैलेंज हेल्थ सिस्टम्स. ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब. क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ में बिल्डअप किया जा रहा है. तो ये एडीबी के साथ कोलैबोरेशन में एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोलैबोरेट किया है इंडिया ने. नेक्स्ट इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप. सो द आंसर टू दिस इज नीरज चोपड़ा. So Navjot Chopra has clinched gold medal in men's javelin throw event at World Athletics Championship. आपको पता है ये बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी. So he made history by becoming the first ever Indian athlete to secure a gold medal at the prestigious event. ठीक. Kashi Cultural Pathway is associated with which block? So G20 से associated है Kashi Cultural Pathway. ठीक है. Next is which city is the host of B20 Business 20 ठीक है समिट इंडिया 2023. तो ये दिल्ली में हुआ था समिट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द समिट इन न्यू दिल्ली. इट ब्रिंग्स पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स एंड ऑल दिस अक्रॉस द वर्ल्ड. वायबिलिटी गैप फंडिंग for the development of BESS aims to generate 40 megawatt hour of PS projects by 2030-31. So that has been the the objective. The Union Cabinet ने approve किया है scheme for viability gap funding aimed at fostering the development of battery energy storage systems. ठीक है, BESS मतलब battery energy storage systems. ठीक है, so that has been the objective. Battery energy storage systems. ठीक है, the scheme aspires to generate 40 megawatt hour of battery energy storage systems by 2030-31. So 2030-31 is the objective. It is the target by which we need to do that. ठीक है, just remember this. Next is which city is the host of Bharat Drone Shakti 2023? The answer is Ghaziabad. So Indian Air Force is collaborating with Drone Federation of India, jointly host. ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति. सो इट विल बी इंडियन एयर फोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया. ओके, एंड इट विल बी हेल्ड इन गाजियाबाद. तो आपको पता है वहाँ पे हिंदन एयर फोर्स बेस भी है, इंडियन एयर फोर्स का हिंदन एयर फोर्स स्टेशन. ठीक. नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल. The answer to this is UIDI, Unique Identity Authority of India, UIDE. होता है आधार कार्ड. सो एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल कहाँ पे होता है? मुंबई में. सो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हैपेंड इन मुंबई. यहाँ पे UIDAI. ठीक है, इट लॉन्च दिस फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम. सो व्हाट द ऑब्जेक्टिव हियर इज, ठीक है, introduce enhanced face authentication system developed in-house with AI and machine learning capabilities. ठीक है, focusing on reimagining Aadhaar authentication. Next is which city is the host of transnational grid connections for One CERN, One World and One Grid conference. So the answer to this is New Delhi. So host city for this OSOWOG conference is New Delhi. ठीक है, and the preparation, see the 18th G20 summit हुई इंडिया में. ठीक है, the conference title transnational grid interconnections for One CERN, One World, One Grid took place. ठीक है, PGCIL, Power Grid Corporation of India organized this, and it highlighted the significance of cross-border grid interconnections in the context of global sustainability. So it was kind of organized by PGCIL, Power Grid Corporation of India Limited. ठीक.
Next is Satkoshia Tiger Reserve. This we have read many times in the exam as well. So it is situated in Odisha. ठीक है, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व 2 हाईली डिकम्पोज एलिफेंट कार्कसेस मिले थे. तो रिसेंटली अगर सवाल पूछा जाए कौन से टाइगर रिजर्व में 2 एलिफेंट कार्कसेस मिले थे, डिकम्पोज्ड एलिफेंट कार्कसेस, तो आंसर इज सतकोशिया. एलिफेंट कार्कसेस वाज फाउंड. ठीक है, तो दिस रिजर्व इज सिचुएटेड इन ओडिशा, स्पैनिंग अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स अंगूल, कटक, बौद्ध एंड नायागढ़. तो इतना आपको याद नहीं रखना, बस ये रिमेंबर करें सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है. यहाँ पे 2 एलिफेंट कार्कसेस हैव बीन फाउंड. नेक्स्ट इज द 12 feet high statue of Mahatma Gandhi was inaugurated recently along with गांधी वाटिका in which city? तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में गांधी वाटिका के साथ 12 feet high, ठीक है, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी has been unveiled, inaugurated in New Delhi. Okay. Next is MQ-9B Predator drone, which was recently in use was developed by which country? So the answer is United States. तो US का है ये MQ-9B Predator ड्रोन. तो ये एग्जाम में पूछेगा सिर्फ कि MQ-9B क्या है. तो इट्स अ प्रीडेटर ड्रोन, इट्स अ ड्रोन डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, USA का है. ठीक है. नेक्स्ट इज लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर was launched by which agency? तो नासा ने लॉन्च किया है. LRO, नासा's LRO, लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर, recently captured image of India's Chandrayaan 3. Launched in 2009, LRO's primary mission was to create 3D map of moon surface from a polar orbit. तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, नासा द्वारा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? 3D मैपिंग ऑफ लूनर सरफेस फ्रॉम इट्स पोलर ऑर्बिट. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस कुड बी आस्क्ड. नेक्स्ट इज which railway station was recently awarded Green Railway Station certification, highest rating of platinum by Indian Green Building Council? So the answer is Vijayawada, आंध्र प्रदेश. तो इस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग दी गई, प्लैटिनम बाय द इंडियन IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इज आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज उमायम लेक. कहाँ पे है ये? मेघालय में है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लेक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाड़ा पानी, लोकल पार्लर बाड़ा पानी. तो आपका जो गुवाहाटी से while being posted, it was a normal routine for us when we visited Meghalaya, so we did stop by here. So it's a lovely place. If you get a chance, must visit this place. Guwahati to Shillong के रास्ते में. So this Umayam Lake is situated. It's a beautiful place, and it is that's why Meghalaya is is very rich with respect to the natural beauty. Next is Kirkuk, which was recently in news, located in which country? The answer is Iraq. तो ये important question है. Northern Iraqi city है. So a curfew was imposed here after violent confrontations with the rival demonstrations by Kurdish. तो Kirkuk. तो ये cities के नाम ज़रूर पूछे जा सकते हैं. It is in North Iraq. ठीक. Next is which city's metro railway has launched tourist smart cards? तो यहाँ आपका नई दिल्ली के मेट्रो ने लॉन्च किया टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स. ठीक. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th एंड द लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A, 17 अल्फा. द आंसर इज महेंद्रगिरी. ठीक है, 7th एंड द लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A महेंद्रगिरी was launched as Mazgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai under Project 17A. क्या है ये Project 17A? Total of 7 ships were constructed, 4 under MDL and 3 under GRSE Kolkata. तो Project 17A, if we just talk a little bit about it, Project 17A of the Indian Navy, क्या था इसका टारगेट? ठीक है, 7 आपको बनानी थी स्टेल्थ फ्रिगेट्स
ठीक है, 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स। इसमें से आपकी 4 बनी कहाँ पे, मसगांव डॉक लिमिटेड, एंड 3 बनी आपकी GRSE, ठीक है, दिस इज इन कोलकाता एंड दिस इज इन मुंबई। एंड द लेटेस्ट दैट इज 7th इज महेंद्रगिरी। ठीक, नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। सो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स परसुइंग हायर स्टडीज इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो SC ST स्टूडेंट्स टू परस्यू, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस किस चीज़ के लिए, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स द एंटायर कोर्स फीस, पूरी कोर्स फीस गवर्नमेंट द्वारा रीइंबर्स कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, इट इज़ इन ओडिशा। नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस। द आंसर टू दिस इज ग्वालियर। सो इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस मूविंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स was jointly organized by Ministry of Civil Aviation and CII, Confederation of Indian Industries in Gwalior. So, Ministry of Civil Aviation and CII कहाँ पे, ग्वालियर में। ठीक है, so it is a G20 initiative in aerospace sector under G20 and B20 priority, focusing on developing global value chains for global trade and investment. Just remember this much. Next is which Indian has won 2023 Raman Magsaysay Award? So that is very important question. Raman Magsaysay Award Ravi Kannan जी को मिला है। Assam based oncologist, cancer specialist Ravi Kannan has been named one of the 4 winners of the 2023 Raman Magsaysay Award, Asia's equivalent of a Nobel Prize. So he is the recipient of India's 4th highest civilian award, Padma Shri भी इनको मिल चुका है, and he is the director of Assam's Kachar Cancer and Research Center. So she 2023 रमन मैगसेसे, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला हुआ है, फिर आपके जो जर्नलिस्ट रवीश कुमार उनको भी मिला हुआ है। मैगसेसे, रमन मैगसेसे 2023 टू मिस्टर रवि कन्नन। ठीक है, ही इज अ oncologist based in Assam. ठीक, next is who is the first woman to head Railway Board of India? The answer is Jaya Verma Sinha. The Union government appointed Jaya Verma Sinha, chairperson of the Railway Board, become the first woman to head the board. ठीक है, so she succeeded Anil Kumar Lahoti as chairman and chief executive of the Railway Board. She is a seasoned member of the Indian Railway Management Service, IRMS की। तो इनका नाम क्या है, फर्स्ट वुमेन, ये नाम याद आना चाहिए, पूछा जा सकता है। आई वुड कॉल इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, जया वर्मा सिन्हा। शी इज एन IRMS ऑफिसर। विच स्टेट लॉन्च गृहलक्ष्मी स्कीम? सो कर्नाटका ने अभी लॉन्च की थी, नई गवर्नमेंट बनी थी, तो हेड बाय सिद्धारमैया जी। सो दे लॉन्च दिस गृहलक्ष्मी स्कीम। Next is which country is set to hold referendum to recognize country's indigenous people in its constitution? So ऑस्ट्रेलिया का है ये। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिजिनियस पीपल के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेफरेंडम करना था। सो ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू होल्ड लैंडमार्क नेशनल रेफरेंडम इन अक्टूबर टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीज इंडिजिनियस पीपल। बाद में आपको पता है कि जब अक्टूबर में हुआ तो ये रेफरेंडम फेल हो गया। ठीक, किशोरे जेना इज सोशल विच स्पोर्ट्स? ही इज अ javelin thrower. So Odisha's javelin star Kishore Jena became the first from the state to represent India in the finals of World Athletics Championship. ठीक है, so at the World Athletics Championship कहाँ पे हुई? बुडापेस्ट, हंगरी। He finished 5th with a personal best of 84. So Kishore Jena इनका स्पोर्ट क्या है? javelin throw, and he belongs to Odisha. और आपका ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ हुआ?
ये आपका हुआ बुडापेस्ट में, ठीक। नेक्स्ट इज प्रज्ञान रोवर ऑफ द चंद्रयान-3 मिशन हैज़ कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस। तो इसने सल्फर की प्रेजेंस को वेरीफाई किया है। सो ड्यूरिंग अ रीसेंट एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ऑन बोर्ड दी प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान-3 डिटेक्टेड प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द लूनर साउथ पोल, ठीक है। सो ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? इट कैरीज रेडियोएक्टिव सोर्सेज दैट एमिट अल्फा रेज एंड एक्स रेज ऑन टू द सरफेस सैंपल। तो क्या डिस्कवर किए? सल्फर। तो ये रोवर का नाम भी याद होना चाहिए आपका, जो चंद्रयान-3 का था, प्रज्ञान रोवर। सो नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सेट टू कंस्ट्रक्ट 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? तमिलनाडु में ADB will construct a 25 megawatt solar power plant, ठीक है, in तमिलनाडु, ठीक। so this becomes important, these factual informations. Next is ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान क्या था और क्यों हुआ था? मुंबई में किया गया था। इट रेस्क्यूड 5000 माइनर्स, ठीक है, बाय मुंबई पुलिस। सो द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट एम्स टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट देम, ठीक है। सो फिर इट वॉज लॉन्च इन मुंबई पुलिस ने स्पीयरहेड किया इसको, ऑपरेशन मुस्कान, रेस्क्यू चिल्ड्रन, बच्चों को जो मिसिंग चिल्ड्रन, एंड फैसिलिटेटेड बाय MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। So that is these are how we are trying to cover the most important current affairs that can be asked. To open a climate change and health hub in which city and in partnership with Asian Development Bank? तो इसका आंसर न्यू दिल्ली है। इंडिया ने एक नया क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब दिल्ली में इन पार्टनरशिप विद ADB ओपन किया है, ठीक है, ओपन करने जा रहा है। द हब विल फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग, पार्टनरशिप्स, इनोवेशंस एंड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, infectious diseases and natural disasters driven by climate change to challenge health systems, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ में बिल्डअप किया जा रहा है। तो ये ADB के साथ कोलैबोरेशन में एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोलैबोरेट किया है इंडिया ने। नेक्स्ट इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? सो द आंसर टू दिस इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हैज़ क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। आपको पता है ये बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। सो ही मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल एट द प्रेस्टिजियस इवेंट, ठीक। काशी कल्चरल पाथवे इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? सो G20 से एसोसिएटेड है काशी कल्चरल पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ B20 बिजनेस 20, ठीक है, समिट इंडिया 2023? तो ये दिल्ली में हुआ था समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द समिट इन न्यू दिल्ली। इट ब्रिंग्स पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स एंड ऑल दिस अक्रॉस द वर्ल्ड टू डेलिब्रेट एंड डिस्कस अबाउट द B20 इंडिया कम्युनिके के बारे में डिस्कस करके, ये ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट दैट हैपेंड इन इंडिया दिस ईयर 2023. सो दैट्स अबाउट इट. नेक्स्ट इज एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट, हाउ मेनी स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड एज बीइंग a high conservation concern? तो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट के तहत 178 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन केप्ट अंडर द स्पीशीज ऑफ कंसर्न, ठीक है, स्पीशीज ऑफ कंसर्न. सो एज पर दिस 178 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बर्ड्स आइडेंटिफाइड, ठीक है. of the 338 species studied in India, for changes in numbers over the last 30 years, 60% have experienced decline, ठीक है. तो ये आपको बस याद रखना 178 अगर पूछा जाएगा तो, वैसे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट इतना पूछा जा सकता है, तो इमीडिएट प्रायोरिटी पर रखा गया है इसको 178 स्पीशीज को. विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विल ग्रांटेड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस? सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. तो ये किस कंट्री ने दिया है इंडिया को? अगर पूछा जाए इंडिया को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को किस कंट्री ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2023? सो दिस इज ग्रीस. ग्रीस ने दिया इंडिया को. नेक्स्ट इज
Who is the head of the committee set up to onshoring the India innovation to GIFT IFSC? So the answer to this is G. Padmanabhan. A committee of experts to onshoring the Indian innovation to GIFT IFSC constituted by IFSCA. ठीक है, तो ये जी पद्मनाभन है इस कमेटी के हेड. नेक्स्ट इज which is the top state for exemplary performance in the smart cities mission? So which is the top state for exemplary performance in the smart cities mission 2022? So smart cities mission में मध्य प्रदेश ने टॉप किया. आपको पता है इंदौर has emerged as the cleanest and the smartest city. So that is MP has been ruling the other states in this smart cities initiative. Dholpur Karoli is the recently approved tiger reserve of which Indian state? तो ये राजस्थान में, ठीक है. धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान इज द 54th टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो इसको अप्रूवल कौन देता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान का ही 5th रिजर्व है. तो ये आपको नाम याद रखना है. इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली. धौलपुर करौली, ठीक है, ये राजस्थान में, और ये राजस्थान का 5th है. राजस्थान के बाकी कौन कौन से हैं अगर हम बात करें राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स के बारे में? सबसे पहले आपका रणथंभौर, देन यू हैव सरिस्का, देन मुकुंदरा हिल्स, अभी रिसेंटली ये रामगढ़ विस्तारी भी ऐड हुआ था. तो 5 टाइगर रिजर्व्स है अभी राजस्थान में. सो यू हैव टू गेट योर हेड अक्रॉस दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूटी इम्प्लीमेंट्स चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम? तो ये तमिलनाडु ने अभी शुरू की है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम. ठीक है. इट विल बेनिफिट अराउंड 31,000 schools and 17 lakh students. ठीक है. Chief Minister's breakfast scheme in Tamil Nadu. Next is which movie won the best feature film award at 69th National Film Awards? So Rocketry, the Nambi effect, so which showed the India's rocket जो journey थी, उसमें it was judged as the best film and best actor award. अगर जो आपका 69th National Film Award में best actor award was given to Allu Arjun and Alia Bhatt. ठीक है. कृति सैनन शेयर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. ठीक है. आलिया भट्ट एंड कृति सैनन शेयर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज राफेल नडाल, द ग्रेट टेनिस प्लेयर, हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर विच इंडियन टेक्नोलॉजी ब्रांड? तो इन्फोसिस ने रोप इन किया है नडाल को एज अ टेक्नोलॉजी एम्बेसडर. सो ही हैज़ हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स टू हिज क्रेडिट? 22 ग्रैंड स्लैम्स. ठीक है. तो ही इज़ अ ग्रेट चैम्पियन, अ ग्रेट लीडर, स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. हु इज़ द हेड ऑफ द steering committee formed to draft national curriculum framework for school education? तो इसका आंसर है श्री के कस्तूरी रंगन. श्री के कस्तूरी रंगन ठीक है. ही विल बी, सो श्री के कस्तूरी रंगन विल बी हेडिंग दिस. ठीक है. नेशनल काउंसिल of Educational Research and Training released the National Curriculum Framework for School Education. ठीक है. तो के कस्तूरी रंगन will be heading this. Next is which institution developed Astra indigenous air-to-air missile? So which institution developed the Astra air-to-air indigenous missile? The answer to this is DRDO. ठीक है. तो DRDO ने ये डेवलप किया है अस्त्र. ठीक है. So what about this? So it is an air-to-air missile. That is the important thing to remember. It is an air-to-air missile. That is an important fact here. दूसरा, successfully test fired from the light combat aircraft. कहाँ से फ्लैश टेस्ट हुआ किया? LCA तेजस. तो गोवा से, गोवा कोस्ट से. ठीक है. Fired from गोवा कोस्ट.
The missile was released successfully, carried out from the aircraft at an altitude of this much feet. This may not be important. तो develop किसने किया? DRDL, Defense Research Development Laboratory, Research Center Imarat, and other laboratories of DRDO. So DRDO has been spearheading this, research and technology development analysis of the Indian various satellites and missiles, particularly missiles. The world's first spotless giraffe was born in which country? So the answer to this is US. Spotless baby giraffe was born at the Brights Zoo, US. It's believed to be the only singularly colored giraffe in the world. The female giraffe is uniformly brown in color and lacks the distinctive pattern community found in giraffes and also exceptionally long necks. So they are famous for. Okay? So Bright Zoo, stated that giraffe has already had a height of 6 feet. So world's first, simple इसमें इतना याद रखियो आप, world's first spotless giraffe आपको कहाँ मिले? US में. US का Bright Zoo. Next is Shretha Thavism has been elected as the Prime Minister of which country? So she has been elected as the Prime Minister of Thailand. So Shretha Thavisin as the Premier of Thailand. ठीक है. Earlier former Prime Minister Thaksin Shinawatra, तो ये नाम याद रखना चाहिए आपको. Earlier Prime Minister returned from years of self-imposed exile and began an 8-year prison sentence. ठीक है. African Union has suspended which country until the effective restoration of constitutional order. तो नाइजर को इन्होंने सस्पेंड कर दिया. ठीक है. So African Union suspended Niger from all institutions until the effective resolution of constitution rule following the coup. So coup हुआ यहाँ पे नाइजर में. So नाइजर के बाद coup के बाद इस नाइजर को अफ्रीकन यूनियन से निकाल दिया गया. तो अराउंड 54 आई गेस, तो -1 अराउंड 54 मेंबर्स हैं इसके. तो नाइजर को निकाल के आप चेक कर लीजिएगा एक बार. इंडिया हैज़ पार्टनर विद विच कंट्री फॉर माइटी नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च कोलैबोरेशन? तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. ठीक है. हमने जो नेशनल US नेशनल साइंस फाउंडेशन और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट हैज साइंड अ implementation arrangement on research cooperation. ठीक है. Which country is the host of World Water Week 2023? So the answer to this is Sweden. The Director General National Mission for Clean Ganga, ठीक है, recently chaired an online session for India, online session in India during the World Water Week. The session was titled Peer Networking for Integrated River Basin Planning and Management. ठीक है. World Water Week कब मनाया जाता है? 20 से 24 अगस्त के बीच. ठीक है. तो दिस वॉज हेल्ड इन एनुअल इवेंट है, जनरली ऑन स्टॉकहोम में होता है, विद अ थीम सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द वाटर वाइज वर्ल्ड. सो वी नीड टू क्रिएट अ वाटर वाइज वर्ल्ड. सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड. तो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ दिस ईयर्स इवेंट? स्वीडन. ठीक है. स्वीडन में सो इट्स एनुअल इवेंट हेल्ड ऑनलाइन एंड एट स्टॉकहोम. तो स्टॉकहोम में भी होती है और ऑनलाइन भी होती है. ठीक. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर प्राइमा ETT1 किसने बनाया? CSIR. ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11. तो CSIR इज बिहाइंड दिस. ठीक है. Next is, what is NBRI Namo 108, which has been developed by CSIR NBRI? So it's a lotus species. So Shri Jitendra Singh, the Union Minister of Science and Technology, unveiled a new variety lotus flower which has 108 petals. ठीक है. The lotus name NBRI Namo 108 is developed by CSIR and National Botanical Research Institute based in Lucknow. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का. तो 108 का इसमें नंबर है. क्या मतलब है? इसके 108 पेटल्स होते हैं. 108 पेटल्स. सो NBRI नमो 108. NBRI नमो 108. So it has 108 petals. CSRI and NBRI. ठीक. Next is who has been conferred as the first ever
Udyog Ratna Award instituted by Maharashtra. So Ratan Tata ji, the great industrialist, philanthropist, and a great business leader of India. So he has been awarded as the first ever Udyog Ratna Award by Maharashtra government. Next is, which country is the host of 15th BRICS Summit? So South Africa has hosted this year's BRICS Summit. So it's a summit of major emerging economies. क्या क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इस बार आपको पता है और भी कंट्रीज ऐड हुई हैं. ठीक है. साउथ अफ्रीकन President Cyril Ramaphosa also invited 67 countries to the summit, including 53 other countries as well. So you please check which are the latest entrants to the BRICS. Expanded BRICS हो गया अभी. कौन सी countries में ऐड हुई हैं? Expanded BRICS, BRICS plus, या आप उसको एक बार please check this. ठीक. Next is which Union Ministry has notified green hydrogen standards for India? So MNRE, obviously, Ministry of New and Renewable Energy, is going to be catering to these things, green hydrogen standards. Next is Luna 25. The lunar mission of which country? So it is of Russia. Russia's lunar mission. Russia's first lunar mission in nearly 5 decades. ठीक है. So it crashed. India के चंद्रयान से पहले गया था. It crashed and spun into uncontrolled orbit. The lunar mission was Russia's first since 1976. And it was part of the Soviet Union, and only 3 governments have managed to successfully do moon landings: Soviet Union, China, United States, and now the latest entrant is our own country, India, which has successfully landed on the South Pole and first country to land on the lunar South Pole. Okay? So Luna 25, Russia. Next is, which company is set to launch India's first kerosene oxygen powered rocket? Agnikul Cosmos. So Indian firm Agnikul Cosmos is on its way to becoming the first in the country to privately design, develop and launch liquid fuel rocket. ठीक है. Agnikul is targeting to launch their maiden rocket known as Agniban sorted. तो इसका नाम क्या है? Agniban. Agniban sorted. ठीक है. So it is a single stage launch vehicle driven by Agnikul's patented Agnilet engine, an entirely 3D printed 6 kilonewton semi cryogenic engine. तो Agnikul Cosmos इंडिया की जो प्राइवेट फर्म है उसने इट बिकम द फर्स्ट कंपनी जिसने इंडियाज फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट अग्निबान सॉर्टेड को लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना कौन सी स्टेट से जुड़ी हुई है? तो हिमाचल प्रदेश की स्कीम है ये. सो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिए प्रोविजंस ऑफ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना. ठीक है. फाइनेंशियल ईयर दिस बाय इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन वर्क्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स एंड चैनलाइजेशन ऑफ नालाज अंडर इट. सो इतना नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस स्टेट की है? दिस इज ऑफ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गाम. ठीक है. सो द आंसर टू दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च सर्टिफाइड सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गाम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो ये उद्गाम इनिशिएटिव किसका है? पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम. द आंसर टू दिस इज रशिया. इंडिया, चाइना, Iran have set up pavilions at the ongoing Army 2023, the 9th International Military Technical Forum organized by Russia. So ये रशिया ऑर्गेनाइज कर रही है 9th International Military Technical Forum. India Pavilion, which has stalls by DRDO and 3 defense PSUs. कौन सी? BL, BEML and Goa Shipyard Limited. तो BEL, DRDO, BEML and GSL, Goa Shipyard Limited. So these are the 4 firms. ठीक है. Next is, when was Maritime State Development Council constituted in India? The answer to this is 1997. Maritime State Development Council, apex advisory body, constituted in 1997 to develop maritime sector.
So it aims to ensure the integrated development of major and minor notified ports. So हमारे यूनियन पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवे मिनिस्टर कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल. He was the ex-CM of Assam and the current CM is Mr. Himanta Biswa Sarma. ठीक है. तो he chaired the 19th meeting of Maritime State Development Council in केवाड़िया. ठीक है, केवाड़िया का गुजरात, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है. Next is, what is the name of the new scheme launched to augment city bus operation by 100 e-buses on PPP model? तो इसका नाम है PM e-bus सेवा. तो प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, ठीक है, ये नई स्कीम लॉन्च की गई है. सिटी बस ऑपरेशन को 10,000 बसेस, इसमें 10,000 ई बसेस इसमें PPP मॉडल पे लॉन्च की जाएंगी. नेक्स्ट इज, विच इंडियन सिटी इज द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट? विच इंडियन सिटी, यहाँ पे कौन सी सिटी में हुई है? बेंगलुरु में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट. विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड इट? सो द आंसर टू दिस इज बेंगलुरु. ठीक है. नेक्स्ट इज मतंगिरी हाजरा. Matangiri Hazra, recently in news, was a woman freedom fighter from which state? So she was from West Bengal. During her address to the nation on the eve of Independence Day, President Draupadi Murmu paid tributes to women freedom fighters including Matangiri Hazra, Kanaklata Barua from Assam. So Matangiri Hazra from West Bengal vociferously and vigorously participated in Mahatma Gandhi's civil disobedience movement, especially the salt satyagrah. ठीक है. He was 73 when she fell to the British bullets, while Kanaklata Barua was only 17. She was from Assam. ठीक. Next is, India has settled its first ever crude oil payment to which country in local currency? तो UAE. तो इंडिया ने अभी UAE के साथ दिरहम रुपी एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे वो इंडियन रुपी में उसको पे करेगी. ठीक है. सो इट विल बूस्ट इंडियाज बायलैटरल ट्रेड, and by paying its first ever crude oil payment in rupee, local currency, it has taken a major step in boosting its global economic dynamics has improved. Next is Lake Ohrid. Lake Ohrid कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये यूरोप में है. Lake Ohrid recently न्यूज़ में था. It's on the border between southwestern part of North Macedonia and eastern Albania. ठीक है. It is one of the oldest and deepest lakes. तो लेक औरत, जस्ट आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए आपको, एग्जाम में आता है तो. लेक औरत यूरोप में. नेक्स्ट इज बिंदेश्वर पाठक. तो ये कौन, आपको पता है सोशल वर्क, ये शुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर और पद्मा भूषण अवॉर्डी सोशल वर्कर बिंदेश्वर पाठक. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 60. He was a great social reformer and create a disruption in the social field. ठीक है. The Comptroller in the Auditor General of India has flagged 3 irregularities in which scheme? किस स्कीम में? ये भारतमाला परियोजना. भारतमाला परियोजना या प्रोग्राम, it was introduced after the सागरमाला. सागरमाला को क्या था? पोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करना था, और ये आपका डिफरेंट जो नदर्न बेल्ट है, पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, वहाँ पे पूरा रोड कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी इंप्रूव करना. तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व की हैं CAG ने. Maui Island, which is recently in news, is located in which country? तो USA में है. Is the second largest Hawaiian island located in the US. In the recent natural disaster in the US, numerous wildfires are sweeping across Hawaii, notably Maui Island, resulting in 55 deaths. तो बस इतना याद रखना आपने. Maui Island कहाँ पे है? Maui, just one second. Maui Island is in Hawaii, United States of America. ठीक. Next is what is the name of the Project 17A frigate recently inaugurated by the Indian President? तो विंध्यागिरी. ठीक है. So President Draupadi Murmu inaugurated Vindyagiri, a Project 17A frigate at the GRSC Kolkata. GRSC कोलकाता. तो कौन सी है ये लेटेस्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A? विंध्यागिरी.
नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव. चाइना ने लॉन्च की है. चाइना स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव लॉन्च इन 2015 रिड्यूस अर्बन फ्लड रिस्क. तो वो स्पंज की तरह वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव कर दो कि वो डेवस्टेटिंग फ्लड से हम बचा सकें. और हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं उसको, दैट कैन ऑल्सो बी सीन. सो स्पंज सिटी इनिशिएटिव टू काउंटर फ्लड रिस्क, टू काउंटर अर्बन फ्लडिंग. अर्बन फ्लडिंग को काउंटर करने के लिए दिस इज बीइंग यूज्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 नेवल एक्सरसाइज. द आंसर टू दिस इज ऑस्ट्रेलिया. द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 commenced एट सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो इसमें इंडिया की INS शादरी, INS कोलकाता पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है. मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है. ठीक है. इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कभी कभी US को भी हम बुलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज लॉन्च इट्स कोलैबोरेशन विद विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ ODOP का कोलैबोरेशन हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो इनिशिएटिव अंडर, ये इनिशिएटिव किस चीज़ का है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है. तो इसने MORD के साथ कोलैबोरेट किया है नई दिल्ली में. ठीक है. लॉन्च किया है इसने. तो DPIIT रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जॉइंटली लॉन्च्ड ODOP वॉल. कहाँ पे, एट सरस आजीविका स्टोर. ठीक है. सो ये आपका इस तरह से है. एंड नेक्स्ट इज किस कंट्री ने होस्ट किया जायद तलवार एक्सरसाइज 2023. तो ये आपका UAE ने किया है. बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार एम्स टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जी बिटवीन इंडियन नेवी एंड UAE नेवी. ठीक है. इंडिया से INS विशाखापट्टनम, INS त्रिकंड रीच दुबई टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट. सो बस एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार, UAE की है. इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें. ठीक है. सो इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम विद विच कंट्री. सो द आंसर टू दिस इज सऊदी अरेबिया. So India Saudi Arabia Investment Forum 2023, it was organized in New Delhi. So this is the first formal investment symposium between the two nations. So over 500 companies were there. Saudi Crown Prince had previously announced an investment of about $100 billion in various sectors of Indian economy. Okay? The forum had a lot of MOUs were signed. So what you need to remember here is that India, Saudi Arabia, so they organized their first investment forum. ठीक. And they have promised or $100 billion investment in various Indian economy in various sectors to boost investment climate. Next is which city is the host of workshop on business responsibility and sustainability reporting. The answer to this is Mumbai. Indian Institute of Corporate Affairs in partnership with UNICEF and the National Stock Exchange. National Stock Exchange has organized this workshop in Mumbai. Okay? So this is rooted in the 9 principles of national guidelines for responsible business conduct. It mandates that the top 1,000 listed companies to disclose their environmental, social and governance aspects, that is ESG aspects. So that you need to remember. So this is an initiative of this is organized by the IICA, Indian Institute of Corporate Affairs, UNICEF and National Stock Exchange. So this is what you have to remember here. ठीक है. 3 बॉडीज हैं. कहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस? BRSR conference. It happened in Mumbai. Next is Araku coffee
which was one of the gifts presented to the leaders of G20 summit. So which state, कहाँ कौन सी स्टेट है? अराकू वैली आपकी आंध्र प्रदेश में आपकी, ठीक है, अराकू वैली इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. Then you have during the recent G20 summit in Delhi, world leaders were presented with the selection of handcrafted gifts, ठीक है, representing India's diverse cultural heritage. तो क्या क्या दिया गया था, तो ये आपको इसमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला आ गया इसमें कन्नौज का फेमस इत्तर, फिर कश्मीर का सैफरन और जिसको ज़ाफ़रान भी कहते हैं, अराकू कॉफ़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड टी फ्रॉम नीलगिरीज. ठीक है, दीज वर द 4 थिंग्स. क्या क्या है? कनौजस फेमस इत्तर, वो जो सेंट होता है, ठीक है, दैट परफ्यूम, दैट कंडेंस परफ्यूम. देन ज़ाफ़रान, इसको लोकली ज़ाफ़रान कहते हैं, और सैफरन फ्रॉम कश्मीर. देन यू हैव नेक्स्ट अराकू कॉफ़ी, that is from Andhra Pradesh, and then Nilgiri tea from Nilgiris. ठीक है, right. So gift also featured Sundarban का honey. Sundarban honey also was there. Sundarban's honey. जिगराना इतर फ्रॉम कन्नौज, ये जो हमने पहले पढ़ लिया. पश्मीना शॉल फ्रॉम शांगथांगी गोट्स, ये जो आपका लद्दाख वाले एरिया में. और खादी स्कार्फ सिम्बलाइजिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड कमिटमेंट टू कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. सो दिस टॉपिक फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है. इसमें कौन कौन सी चीज़ें, बस ये कहाँ से है, तो जिगराना इतर आपका कन्नौज से है, तो इसको यहीं पे हम लिख देंगे, जिगराना इतर. ये इतर था जिगराना इतर. और पश्मीना शॉल आपको पता है शांगथांगी गोट से बनती, ठीक है. वरुणा द बायलैटरल एक्सरसाइज इज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्री, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है. फेज़ 2 21वीं एडिशन का, ये आपका अरेबियन सी में हुआ, ठीक है. सो 21st एडिशन ऑफ वरुणा हैपेंड इन अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी. सो वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. एक गरुड़ भी है आपकी एयरफोर्स की, वो भी फ्रांस के साथ है. तो दीज फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. 21st एडिशन हुआ था, ठीक है. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स. सो ये आपका ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर राइट्स आपका हुआ था नई दिल्ली में. और ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी इनॉग्रेटेड इट, ठीक है, एट द ICAR कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली. सो दिस वाज हेल्ड एट द ICAR कन्वेंशन सेंटर इन नई दिल्ली, इन न्यू दिल्ली. Okay, so this becomes very very important. ठीक है. Which Indian tennis player won the runners-up trophy in the US Open doubles final? Rohan Bopanna won the runners-up trophy in the US doubles final, US Open's doubles finals. So he paired with Matthew Abaddon, so the Australian guy, and they lost to defending champions Rajiv Ram and Joe Salisbury in the final of US Open. So Rajiv Ram and Joe Salisbury became the first men's double team at the US Open to achieve 3-peat in more than 90 years. ठीक है. Next is India recently organized the meeting of Strategic Partnership Council with which country? तो अभी हमने देखा था जो समिट हुई थी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ ही, तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी सऊदी अरेबिया के साथ है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो ये नाम आपने याद रखना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर. सो मार्किंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल established in 2019. So this was established in 2019. The council consists of 2 main pillars. क्या है? Political security, social and cultural cooperation and economic and investments. ठीक है, तो ये 2 इसके वो हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है.
All right.